Okay, students. So introduction to trigonometry we will start and हमने एक पीछे एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर। तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है और आप लोग उस वीडियो को देख करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं। तो वी यू कैन understand the about trigonometric ratios and identities which is used in class 10. Okay, now today we will write here the formulas of trigonometric ratios. So as we, if you watch the previous video, then you can see the formulas of trigonometric ratios. So अगर मैं एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, सपोज दिस इज योर राइट ट्रायंगल A, B and C, and B is your right triangle, then BC is your hypotenuse, and this will be your base, and this will be your perpendicular, right? Now, as we know that the trigonometric ratios are sine, cos, and tan, okay? And the reciprocal of these ratios will be cosec, sec, and cot, okay? We have 6 ratios. Now, if I talk about the angle C as theta, I am taking this is theta. So sine theta, basically this is the symbol of angle. This is called theta. Okay. तो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसके जस्ट अपोजिट। तो साइन थीटा विल बी योर P ओवर H, जो हमने भी लास्ट उसमें बताया था कि SCT पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल and सोना चांदी तोल. So sin theta will be S for sine, C for cos, and T for tan. Okay. So sin theta will be P over H, cos theta will be B over H, and tan theta will be P over B. P over B. These are your formulas. And what is P according to this angle? AB divided by BC, AB divided by AC, and BC divided by AC, and AB divided by BC. Okay. Now, what about cosec theta, sec theta, and tan theta? So, we know that the cosec theta is your reciprocal of sin theta. It means H over P. That will be AC over AB. And sec theta is the reciprocal of cos theta. So, H over B, that will be AC over BC. And cot theta will be your reciprocal of tan theta, that will be your B over P, that will be BC over AB. Okay, so how can we decide which is perpendicular or which is base? Hypotenuse is fixed. अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करता ऊपर वाले को, तब मेरा BC परपेंडिकुलर होता और AB बेस। बट अगर मैं एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूं, बट यहाँ पर हमने सी को कंसीडर किया है, तो ए बी मेरा परपेंडिकुलर है और बी सी मेरा बेस है। इस चीज को ध्यान में रखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस लेंगे और एनसीईआरटी की बुक से लेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 अगर मैं लेता हूं, okay, so you can see you have tan A equal to 4/3. okay, ये आपको दिया हुआ है कि tan A equal to 4/3. okay, as we know that
tan A इक्वल टू और tan थीटा इक्वल टू P डिवाइड बाई P। इट मीन्स, और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अदर मीन्स बाकी बचे हुए मैट्रिक रेशियो। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, tan A इक्वल टू 4/3। तो एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ tan A, so tan A equal to P divided by P equal to 4/3. Okay, what is A? Okay, it means you have to draw a triangle here. Okay, so this is your B, A and C. Okay, so this is your A angle. I am talking this angle, and this will be your 90-degree. Okay, so what will be this one? This is your P, because I am talking about angle A, and this will be your B, and this will be your H. Okay, perpendicular base and hypotenuse. So you have perpendicular. Perpendicular means BC equal to 4. Okay, and AB means base equal to how much? 3. Okay, you have base and perpendicular. Now using the Pythagoras theorem, we know that the relation between hypotenuse, perpendicular and base. What is? H square equal to P square plus B square, right? So H square equal to P square plus B square means H square equal to 4 square plus 3 square. That will be 16 plus 9. So H square equal to 25. So I can write it H square equal to 5 square. So H equal to 5. तो हमें hypotenuse क्या मिल गया? 5. Okay. Now you can easily find out using the formulas here, sin theta, cos theta, tan theta. तो अगर मैं A एंगल की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास tan A ऑलरेडी था। अगर मैं sin A की बात करूँ तो sin A क्या हो जाएगा मेरे पास? P over H. तो P मेरे पास क्या है? 4 डिवाइड बाय 5। और अगर मैं बात करूँ cos A की तो B over H मीन्स 3 डिवाइड बाई 5। tan A ऑलरेडी है। बात करें हम cot A की तो cot A रेसिप्रोकल होता है tan A का। तो tan A का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 3/4। और बात करें cosec A की तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है? sin का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ sin A इक्वल टू 1/cosec A and tan A equal to 1/cot A and cos A equal to 1 divided by sec A. ओके, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो cosec A 1/sin A मीन्स 5/4। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। एंड sec A cos A का रेसिप्रोकल दैट विल बी 5/4। ओके, तो आप इस तरह रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल है इसमें कि इफ एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है या नहीं। ओके, तो चलिए कोई पहले हम इस क्वेश्चन के बेस पर एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। ओके, तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन, ओके हम करेंगे क्वेश्चन। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं पहले। ओके, एग्जाम्पल 2 की बात करें तो आपके पास दो ट्रायंगल हैं। ओके, ए बी एंड सी एंड पी क्यू एंड आर। ओके, एंड दीज आर एंगल बी एंड एंगल क्यू। और आपके पास क्या गिवन है कि साइन बी इक्वल टू
साइन क्यू। ओके, गिवन अगर मैं लिखता हूं एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles, okay, and sin b equal to sin q, right? Now अगर sin b equal to sin q है तो b की बात कर रहे हैं तो that is your perpendicular. What is that is your perpendicular? तो sin b equal to होगा and this is your hypotenuse, this is your hypotenuse. So sin b equal to हो जाएगा ac डिवाइड बाई ab और sin q क्या हो जाएगा pr डिवाइड बाय pq, राइट? तो AC डिवाइड बाई AB इक्वल टू PR डिवाइड बाई PQ अगर हम बात करें और इसको हम कुछ एक मान लेते हैं दैट इज योर K। ओके, तो अगर मैं तो AC इक्वल टू क्या हो गया K इंटू AB एंड PR इक्वल टू क्या हो गया K इंटू PQ। ओके, so now you have to find out using Pythagoras theorem, you have to calculate the base, this one. So BC equal to using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem. So we know that कि this is your base, this is your base. तो बेस जो है आपका वो हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस अगर हम बात करें तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो गया ए सी का स्क्वायर। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बी सी स्क्वायर क्या हुआ सॉरी ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं और ए सी की जगह लिखते हैं के इंटू ए बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, तो ये ए बी स्क्वायर कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। ओके, तो बी सी स्क्वायर बेसिकली क्या होगा ए बी स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं क्यू आर की तो क्यू आर क्या हो गया क्यू आर सेम इसी तरह मीन्स पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो पी क्यू को हम ऐसे ही लिखेंगे और पी आर क्या है के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर, तो इसको भी हम देखेंगे तो पी क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालूं यहाँ पर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर दैट विल बी ए बी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर मीन्स इट इम्प्लाइज बी स्क्वायर हटा दो सबका तो बी सी ओवर क्यू आर ए बी ओवर पी क्यू, तो बी सी ओवर क्यू आर ए बी ओवर पी क्यू के इक्वल और ए बी ओवर पी क्यू अगर मैं देखूं वो ए सी ओवर पी आर के इक्वल। ओके, तो यहाँ से अगर हम निकालें तीनों इक्वेशन से तो ए सी ओवर पी आर अगर यहाँ से हम देखें ए सी ओवर पी आर इक्वल टू ए बी ओवर पी क्यू, राइट? तो ये तीनों के तीनों जो रेशियो हैं कि ए बी ओवर पी क्यू इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इक्वल टू ए सी ओवर पी आर, और जब किसी ट्रायंगल के तीनों रेशियो सेम होते हैं तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, तो भाई वो कैसे ट्रायंगल होते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या है कि भाई सारे एंगल इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल होगा। भाई ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो एंगल तो ये इसके इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। नो बात करें एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है आपको दिया है एक ट्रायंगल एसीबी। ओके, एक ट्रायंगल है, एनसीईआरटी की बुक लेके चलना अपने पास में ताकि तुम लोग समझ सको क्वेश्चन को। एसीबी दिया हुआ है, बोल रहा है कि राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, इट मींस ये जो एंगल है वो क्या है सी है। ओके, और
इन विच ए बी इक्वल टू 29, तो ए बी मेरा ये रहेगा, ओके। तो ए बी इक्वल टू 29 यूनिट, और बोल रहा है बी सी इक्वल टू 21, ओके। और एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी दैट इज योर थीटा, राइट, ओके, डन। तो आपको फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा तो मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा क्योंकि मेरे पास बेस भी है और हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बट अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो यू हैव टू फाइंड आउट सिंस इन ट्रायंगल ABC, AB equal to 29 and BC equal to 21 and AC you have to find out. So using Pythagoras theorem, is B square means hypotenuse square, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इट मीन्स 29 स्क्वायर माइनस 21 होल स्क्वायर, ओके। तो भाई 29 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या आता है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 जा 81, 9 2 जा 261 एंड 58 841 बेसिकली, तो 841 एंड माइनस 21 21 जा 441, दैट विल बी 400। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया मेरा 20 स्क्वायर, ओके। तो AC कितना हो गया मेरे पास 20, तो AC जो आया मेरा वो आ गया 20। अब तो कोई है नहीं, मैं एक पार्ट करूंगा, दूसरा पार्ट खुद करना। तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, P ओवर H, और यहाँ पर P क्या है मेरा AC, और H क्या है मेरे पास AB, तो AC ओवर AB, और AC कितना आया 20 डिवाइड बाय 20, और cos थीटा मेरे पास क्या है B ओवर H, मतलब BC ओवर AB, और दैट विल बी 21 ओवर 29। तो जरा फर्स्ट पार्ट को देखें हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 20 ओवर 29 होल स्क्वायर प्लस 21 ओवर 29 होल स्क्वायर, so that will be 400 divided by 841 plus 441 divided by 841, that will be 841 divided by 841, so that will be 1, answer will be 1। सेकेंड पार्ट में आप खुद करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ओके, ए बी सी, और राइट एंगल कहां पर है, वो है एंगल बी पर, ओके। और आपको गिवन है tan A इक्वल टू 1, ओके, tan A इक्वल टू 1, तो आपको वेरीफाई करना है, ये है गिवन, और वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1, ओके। तो tan A मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मीन्स दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। नाउ चलिए, आपको गिवन है tan A इक्वल टू 1, तो tan A मतलब आपके पास फॉर्मूला क्या है रेशियो का, P ओवर B, और दैट विल बी 1 ऑब्लिक 1, इट मीन्स PB अगर मैं 1 ले लूं और BB में अगर 1 ले लूं, तो व्हाट इज AC, व्हाट इज H, तो यूजिंग Pythagoras theorem,
you have to find out h square equal to p square plus b square. h क्या है मेरे पास? ac. तो ac का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. तो ac मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट 2. ओके, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो गया. अब हाइपोटेन्यूस मुझे मिल गया, तो जरा देखें 2 साइन ए और कॉस ए. तो 2 साइन ए कॉस ए विल बी, तो साइन ए क्या होता है मेरे पास? p ओवर h. तो p मेरे पास क्या है? 1. तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाय रूट 2, बिकॉज p इज योर 1 एंड h इज योर रूट 2. सेम अगर मैं बात करूं कॉस की, सॉरी, सेम साइन a also 1 by root 2 and cos a also 1 by root 2. ओके, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दो और रूट टू 2 होता है, तो 2 इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी 1. ओके, so this is your example number 4. Now last example, then अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 5. ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया हुआ है एक ट्रायंगल OPQ है. You have a triangle OPQ, यानी कि P O N Q, और राइट ट्रायंगल कहाँ पर है? वो P पर है. और आपके पास जो दिया हुआ है, आपके पास है OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है, ये तो है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है आपको? साइन Q एंड कॉस Q. OP तो मेरे पास 7 आ गया, बट आपके पास ना तो हाइपोटेन्यूस है ना ये है. ओके, तो अब अगर मैं Q की बात कर रहा हूं, तो Q मेरा ये है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ. परपेंडिकुलर तो गिवन है, आपके पास ना तो बेस है ना हाइपोटेन्यूस. ओके, तो अब जरा हम देखें कि कैसे हमें फाइंड आउट करना है. तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, राइट. एंड OP तो आपको पता है, और OQ स्क्वायर क्या होगा? OQ अगर हम देखें, OQ बेसिकली हो गया हमारे पास 1 प्लस PQ होल स्क्वायर. कैसे आया वो? जरा देखिए, हम यहाँ से आ जाओ, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है? OQ माइनस PQ इक्वल टू 1. तो OQ क्या हो गया? 1 प्लस PQ. ओके, तो OQ की जगह मैं रिप्लेस करूंगा 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस OP. ओके, चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं कि OP मेरे पास है, इसको मैं ओपन कर दूं, PQ स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो PQ स्क्वायर से तो PQ स्क्वायर खत्म, तो 1 प्लस 2PQ इक्वल टू 49, 2PQ इक्वल टू 49 माइनस 1 इक्वल टू 48, एंड PQ कितना आ गया? 48 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. अब मेरे पास जब PQ आ गया और OP मेरे पास है, तो आप OQ निकाल लेंगे. तो OQ स्क्वायर कितना होगा? PQ कितना है मेरे पास? 24 का होल स्क्वायर, जरा देखेंगे यहाँ पर. और OP कितना है मेरे पास? दिस वन. तो 24 में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 576, और ये होता है 49, ये हो गया 625, और 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर. तो OQ आ गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर. ना अब मेरे पास सब कुछ आ गया, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया. ओके, अब मुझे साइन Q निकालना है, तो आप निकाल लो साइन Q. साइन Q क्या होता है? P ओवर H, और यहाँ पर जब मैं Q की बात कर रहा हूँ,
तो क्यू मेरा ये है, तो परपेंडिकुलर मेरा ये है ओपी, तो ये हो गया ओपी डिवाइड बाय ओक्यू, मीन्स ओपी कितना है 7 डिवाइड बाय 25। अगर मैं कॉस क्यू की बात कर रहा हूँ तो बी ओवर एच, और बी क्या है मेरा पी क्यू डिवाइड बाय ओक्यू, मीन्स 24 डिवाइड बाय 25। तो ये सारा क्या है आपका एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। अगर इनमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। नाउ अब इन एग्जाम्पल के बेसिस पर हम कौन कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के कर सकते हैं, तो ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.1 में अगर मैं बात करूँ पहले क्वेश्चन की, तो मैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो एक्सरसाइज 8.1 first question you can do using this example, and 10p minus quota question number 2 you can do using this example number 3, exercise 8.2 question number 2, okay, and question number 3 also, okay, and question number 4 and 5 you can do using example number 1, okay. Now question number 6, example number 2, exercise 8.1, question number 6, okay, you can try. And question number 7 you can try using example number 3 and example number 8 also, and example number 9 also, okay, or example number 10 you can do using last example, exercise 8.1 question number 10, and 11 is your only true false, so you can practice, okay. And अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को एक बार हिंट देंगे आप लोगों को कि कैसे उसको सॉल्व करना, हर एक क्वेश्चन का मैं हिंट दे दूंगा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ओके। अगर